Good afternoon, everyone. Good afternoon. Good afternoon, online students. So, in this session, we are going to discuss about history optional. आप में से कोई मुझसे पढ़ा पहले? तुम तो तीनों नहीं पढ़े हुए. कोई ऑनलाइन स्टूडेंट जो मुझसे पहले पढ़ा हो? करणदीप सिंह. एक सेकेंड, ऑनलाइन वाले बच्चों के थोड़े डाउट है, ले लें. हाँ जी, किरण जोत. किरण जोत, डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग? ओके ओके. चलो, हिस्ट्री ऑप्शनल. व्हाट डू यू वांट टू टेक हिस्ट्री ऑप्शनल? अच्छा लगा था. क्या पढ़ा था? एएमसी दीपक सर से. शुरू से इंटरेस्ट हिस्ट्री में ही है. व्हाट इज योर बैकग्राउंड? ओके. नॉन मेडिकल करते वक्त भी हिस्ट्री ही पढ़ी है मैंने. अच्छा. एंड व्हाट हैव यू डन आफ्टर योर नॉन मेडिकल, लाइक व्हाट यू आर currently doing BA? Okay, where? SD college. What are you doing? ये कैसी चॉइस है भाई? बेंगलुरु कहाँ सीट मिल गई थी? NLU में. तुम्हें NLU बेंगलुरु में सीट मिल गई थी, बट यू चोज टू डू BA फॉर UPSC. टारगेट इज क्लियर. UPSC एंड ओनली UPSC. शेर कभी घास नहीं खाता. व्हाट इज योर बैकग्राउंड? ओके, आप थोड़ी आगे आ जाएंगे प्लीज. हिस्ट्री पढ़ने में इंटरेस्टिंग लगती है. व्हाट इज योर एजुकेशनल बैकग्राउंड? BA कर रही हो. कहाँ से? लुधियाना से. एंड हाउ विल यू मैनेज? हाउ विल यू अटेंड द ऑनलाइन क्लासेस? ओके, दैट कैन बी मैनेज्ड. आर यू अटेंडिंग द GS क्लासेस एज वेल? कौन से बैच में? IPN 1 में. तो आप लोग भी GS लगा रहे हो? Okay. So I hope all the online students also would be attending GS classes already, or they would have completed their GS batches. Anyone who is not attending the GS class or has not attended the GS class and is attending the optional class straight away? Yes, Anto Trini. Okay, you have written your doubt in the chat section. The medium of instruction is going to be Hindi and English mix. So, like, I want to clarify that the course will not entirely be in English. The medium of instruction is going to be Hindi and English mix. The notes are going to be entirely in English, but the conversations in the class will be having both in Hindi as well as in English. So, history optional. Why history optional? First of all, what is the general rule? What is the general thumb rule? How do you choose optional for your UPSC? First and foremost, according to me, should be your interest. Again, I am discussing this topic with all my experience. Okay, we should choose our optional subject on the basis of our interest. If you don't have interest, you do not have any interest in one particular subject,
you won't be able to study it for your optional properly, because for your optionals you need to have in-depth knowledge of that particular subject, and without interest you will not be able to go into depth. You will try to read it superficially. Okay, like when is this chapter going to end, when is this topic going to end, when is the next topic going to start, when will the syllabus be over, when will I be able to complete this book. So you will always be rushing through the topics if you don't have interest. लेकिन if you have interest obviously, तो मैं दो चीजें आपको बताऊंगा, दो चीजें आप खुद से पढ़ के आओगे. Like let me explore some more aspects of it. I have discussed 5 aspects of a particular topic in the class. Let me see if there are 2 more aspects to it. Can I find something on the internet? Can I find something in my book? So first and foremost has to be your interest. If you have background in that particular subject, that also obviously helps, because then you have certain prior knowledge of that subject as well. But ये जो second point है, ये obviously थोड़ा सा backfoot पे चला जाता है, because you are not doing the optional by self study. You are going to cover your optional with us. So when we cover a particular optional in class, obviously we start from the very basics. So even if you don't have any background, so you won't struggle. History optional has double advantage. First of all, it is required for your general studies as well. A lot of things that you cover in optional, at least 50 to 60% of it, if not more, is covered in your general studies. For world history, proportion is even higher. Like there are certain topics that are to be covered in as much detail in general studies as they are required in history optional. But if I have to take history optional as a whole, ancient history, medieval history, modern history, world history, and then at least 50 to 60% of the syllabus needs to be covered for your general studies point of view as well. And on top of that, if you work a little harder, जो थोड़ा सा ज़्यादा हम डेप्थ में जाएंगे, थोड़ी सी ज़्यादा हम बुक्स पढ़ेंगे, थोड़ी सी ज़्यादा हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, तो ऑब्वियसली वो जो डिस्टेंस रह जाता है आइडियल तक पहुंचने के लिए, वो बहुत कम रह जाता है. So that is the biggest advantage of history optional. And history in general is something that non-history optional students struggle with, because in general studies they find that, yeah, okay, I'm gonna be asked 2 questions on ancient India. How much ancient India should I cover? कितनी डेप्थ में मैं कवर करूं? सवाल तो 2 आएंगे. वर्ल्ड हिस्ट्री सवाल तो 1 आएगा. कितनी डेप्थ में मैं वर्ल्ड हिस्ट्री कवर करूं? तो नॉन हिस्ट्री ऑप्शनल वाले बच्चे हिस्ट्री की कवरेज को लेके इन जनरल स्टडीज हमेशा ही डाइसी रहते हैं कि कितने एफर्ट्स लगाए जा सकते हैं, कितनी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, सो दैट आई कैन आंसर 1 क्वेश्चन इन मेंस. प्रीलिम्स में यू डोंट गेट क्वेश्चंस फ्रॉम वर्ल्ड हिस्ट्री इन द प्रीलिम्स. द क्वेश्चंस फ्रॉम वर्ल्ड हिस्ट्री आर आस्क्ड ओनली इन द मेंस, जीएस पेपर 1. एंड उसमें भी देयर आर सर्टेन इयर्स व्हेन 0 क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम वर्ल्ड हिस्ट्री. Now you don't know whether UPSC is going to ask question or not, or at max UPSC has never asked 2 questions from world history. UPSC has never asked 2 questions from world history in general studies. At max 1 question is asked, or like if it is a bad year, 0 questions are asked from world history. But a student cannot neglect that subject altogether. A student is always confused, like कितनी depth में मैं जाऊं, how much time should I spend on world history so that like I am not wasting my time. लेकिन history optional वाले बच्चों को ये crisis नहीं है, because they are in any case going to study world history for their optional, and even if they leave GS वाला portion, automatically all those things are covered in the optional. तो सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही है कि ओवरलैप जो है हमारा 50 to 60% जीएस वाले सिलेबस के साथ रहता है. बाकी यही है कि सिंपल एंड नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट है. You don't need any knowledge of theory, you don't need any calculations. There are very few thinkers that you need to remember, that there are very few theories that you need to cram. It is basically a subject that deals with our own past. Like many of you mentioned that you have got interest in history. What do you mean when you say you have got interest in history? You have got interest in knowing your past. What happened in the past? And why it is important to know our past? Because our past shapes our present, and our present leads to our future. So it is very natural that we have some interest in knowing our past.
अब पास्ट में क्या है कि कई बार क्या होता है कि वी स्टार्ट फोकसिंग वे टू मच ऑन इंफॉर्मेशन, विच इज द केस इन जनरल स्टडीज लिटिल बिट, दैट students tend to focus on information, students tend to focus on facts, students tend to focus on dates, names. History is more than dates, history is more than names, history is more than facts, history is more than information. History is more about understanding. This is the key word here. History is more about understanding our past. History is more about understanding what the context of a particular development was, what were the factors that contributed to it, and what were its consequences. For example, like a very famous topic from the world history, world wars. We have World War I, we have World War II. Instead of focusing on the events of World War, like when did the first battle take place, what was the name of the battle, who attacked who, what was the time, and which were the countries involved, what were the battleships involved. So instead of focusing on these aspects, we focus on the causative factors. What were the factors responsible for World War I? And not only we enumerate those causes, we critically analyze those causes as well. For example, a very famous cause of World War I is the system of alliances. So there were two groups that were present. World history होगी है, कुछ बच्चों की होगी, कुछ बच्चों की like अभी pending होगी. So there were two groups into which the Europe was divided just before World War I. In one group were Britain, France and Russia. In the other group were Germany, Austria-Hungary and Ottoman Empire. Now this system of alliances is largely held responsible for causing World War I. But we'll critically analyze to what an extent this system of alliances was responsible for World War I. Like, obviously, not entire responsibility for causing World War I can be ascribed to one single Karan. Now, this is a general thumb rule for UPSC. You never have to ascribe full responsibility for anything, any event on any one single topic. You always have to like conclude your answer or like mention in the later part of your answer that multiple reasons were responsible, and those reasons in conjunction with system of alliances contributed to World War I. So in this way, the focus is more on analysis of the historical developments, and it is not on facts, it is not on dates, it is not on information. So first and foremost, you should know your optional. So अगर सिर्फ कहानियों के लिए ऑप्शनल लेना है तो ऑप्शनल नहीं लेना है, एनालिसिस के लिए ऑप्शनल लेना है, अंडरस्टैंडिंग के लिए ऑप्शनल लेना है कि क्यों हुआ, एंड देन वंस द वॉर हैपेंड उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, पॉजिटिव नेगेटिव ऑन वेरियस डायमेंशंस की, सोशल उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, विमेन के ऊपर कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, जियोपॉलिटिक्स के लिए कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे. तो इस तरह से हम हिस्ट्री ऑप्शनल को स्टडी करते हैं. स्टैटिक सब्जेक्ट है, कोई बदलता नहीं रहता. PSIR में इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं, हालांकि लाइक अदर सब्जेक्ट्स आर देयर जिनका काफी ओवरलैप है. जैसे PSIR का बहुत ओवरलैप है जनरल स्टडीज के सिलेबस के साथ, पूरा का पूरा GS2 आपका PSIR में कवर हो जाता है. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ओवरलैप है, सोशियोलॉजी का ओवरलैप है. तो लेकिन अब अगेन देयर आर टू टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, कुछ स्टैटिक नेचर के होते हैं, कुछ डायनेमिक नेचर के होते हैं. हिस्ट्री ऑब्वियसली बाय इट्स वेरी नेचर थोड़ा सा स्टैटिक नेचर का सब्जेक्ट है, तो बहुत ज्यादा अपडेशन रिक्वायर्ड नहीं होती है. जो चीजें हुई हैं वो बहुत पहले हो चुकी हैं. अब अकबर आया था, अकबर मर चुका है, जो उसने करना था कर दिया है, हमारा एनालिसिस ही बाकी है. तो विल फोकस मोर ऑन द एनालिसिस ऑफ द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स. स्टडी मटेरियल की कोई कमी नहीं है हिस्ट्री ऑप्शनल में. कई बार जैसे हम थोड़ा सा टेक्निकल ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं, उसमें हमें गाइडेंस नहीं मिलती, हमें स्टडी मटेरियल नहीं मिलता. जैसे आई माई सेल्फ, आई लाइक by my education I am a civil engineer. I have done civil engineering from PEC, Punjab Engineering College. लेकिन sufficient guidance was not available as far as like optional subject is there, but sufficient guidance was not available, sufficient study material was not available. So I chose history as my optional subject because study material was available, guidance was available. I have done it with Raj sir only. तो गाइडेंस अवेलेबल होती है, स्टडी मटेरियल अवेलेबल होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको चाहिए, आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस चाहिए, आपको हैंडआउट्स चाहिए, आपको बुक्स चाहिए. अबंडेंट स्टडी मटेरियल इज देयर. एंड लास्टली वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट इट इज हेल्पफुल इन बोथ GS एंड बोथ प्रीलिम्स एंड एज वेल एज फॉर मेंस.
तो ये थोड़े से एडवांटेजेस हैं हिस्ट्री ऑप्शनल के। क्या लग रहा है आपको? डुएबल लग रहा है अभी तक तो? कोई डाउट, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? चलें आगे। ऑप्शनल में ना कुछ चीज़ों का इन जनरली ध्यान रखना है, मतलब ये चीज़ें हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए एक्सक्लूसिव नहीं है, किसी भी ऑप्शनल के लिए, इनफैक्ट जीएस के लिए भी टू अ लार्ज एक्सटेंट ट्रू रहती हैं कि, लेकिन मोस्ट ऑफ फॉर ऑप्शनल्स। ऑप्शनल्स का जो डोमेन होता है काफ़ी डिफाइंड होता है, अनलाइक जनरल स्टडीज जहां हम कहते हैं एवरीथिंग अंडर द सन इज पार्ट ऑफ द यूपीएससी सिलेबस। ऑप्शनल्स का जो डोमेन होता है मोर और लेस डिफाइंड सा होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा इनोवेशन का स्कोप नहीं होता कि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। ऑप्शनल में डिफाइंड स्कोप होता है एंड उसी दायरे में ही आपसे सवाल पूछे जाते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नॉट ओनली स्टडी दोज थिंग्स बट ऑल्सो प्रैक्टिस दोज थिंग्स। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, बचपन से सुन रहे हैं, लेकिन हम ये सुनते जरूर हैं बट वी डोंट टेंड टू इम्प्लीमेंट दिस थिंग इन आवर लाइफ्स। हमने आज कुछ पढ़ा है, तो वट एवर वी हैव स्टडीड टूडे we are going to do the answer writing practice on that topic that very day only. We are not going to postpone our answer writing practice to some later auspicious day कि पंडित जी से को बुला के मुहूर्त निकलवाएंगे एंड देन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। सो वी आर नॉट गोना डू दैट। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो आप ऑप्शनल कवरेज में करते हो कि पहले एक बार सिलेबस खत्म कर देते हैं, उसके बाद विल स्टार्ट आंसर राइटिंग। जब कुछ आता होगा तभी तो आंसर लिखूंगा, जब आता ही नहीं होगा तो आंसर कैसे लिखूंगा? ये भी एक दिस इज वन थिंग दैट वी कीप सेइंग टू आवरसेल्व्स। ऐसा नहीं होता है। आज आपने सीखा है, आज आपने 2 घंटे की क्लास लगाई है, भाई कुछ तो उसमें सीखा होगा। अगर उस 2 घंटे की क्लास में एक सवाल ही नहीं बन सकता तो फिर क्लास क्या लगाई है? फिर सर ने पढ़ाया क्या है, आपने पढ़ा क्या है? इफ यू हैव स्पेंट 2 hours ऑफ योर लाइफ स्टडिंग अ पर्टिकुलर टॉपिक, it should at least be that much relevant that one question can be asked from that topic. You practice that one question on the basis of the knowledge that you have today. Tomorrow you'll upgrade your knowledge. Tomorrow you'll have better knowledge. Tomorrow you'll write a better answer. But that should not stop you from writing whatever answer you can today on the basis of knowledge that you have today. So answer writing has to be a very ongoing thing. इन एनी ऑप्शनल, मतलब ये मैं किसी भी ऑप्शनल आप इवेंचुअली आप चूज करो, लाइक दैट वुड बी ट्रू फॉर ऑल दी ऑप्शनल्स। एंड हिस्ट्री ऑप्शनल की क्लासेस में तो हम ये चीज इंश्योर करते हैं कि जो टॉपिक्स हम क्लास में कवर कर रहे हैं, तो कुछ सम ऑफ द क्वेश्चंस आर डिस्कस्ड इन द क्लास एंड सम ऑफ द क्वेश्चंस आर गिवन टू यू फॉर प्रैक्टिस, दैट आई हाईली एनकरेज my students to write that day only and not postpone the answer writing to some later auspicious day. ये हमारी अप्रोच रहती है। अब थोड़ा सा आपको ऑप्शनल का मैं शेख जाकिया के डाउट पे आते हैं। raised a very important question. It is said, like I was anyways going to discuss the syllabus. Now it is said that history optional is a very broad subject. It has got very broad syllabus. You have to cover the entire ancient India. You have to cover the entire medieval India, modern India, world India. So the optional has 4 parts. You know the basic pattern of the optional paper. So the optional paper, you have 2 papers from a single optional subject, paper 1, paper 2. In each paper you have 2 sections, paper 1 section A, paper 1 section B, paper 2 section A, paper 2 section B. So you have 4 sections in total. Section A is ancient history, ancient. Paper 1 section A is ancient. Paper 1 section B is medieval. Paper 2 section A is modern. Paper 2 section B is world history.
So you have four components of history: ancient history, medieval history, modern history, world history. All four components are equally important because they occupy one section each in the entire scheme of things. On top of that, from ancient India, ancient medieval collectively and largely from ancient India, you also have one compulsory map question. So the pattern of the UPSC there are four questions in your question paper. Like, have you gone through the question paper, any of the previous question papers? So I'll just like run you through how the questions are asked in the UPSC. There are two papers and every paper has two sections: section A, section B, paper 1, section A, section B, paper 2. So there are four questions from each section: question 1, question 2, question 3, question 4. Then you'll have four questions here: 5, 6, 7 and 8. Similarly over here, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. In this paper, question number 1 and question number 5 are compulsory. Question number 1 and question number 5 are compulsory. So you must attempt these questions. Question number 1 relates to map. So in your ancient India, map work is very important. It is not that relevant from the point of view of other topics, but for ancient India, map work is very important. Like, there are in total 20 sites are asked, and out of those 20 sites, approximately 15 are from ancient India and 5 are miscellaneous mixed from modern India, from medieval India. So largely the map question relates to ancient India, and it is compulsory to attempt the map question. So what happens is, they will provide you with a map. Certain entries would be made on the map and you would be asked to identify what are the places that are marked on map. So 20 entries would already be made on the map. You would be required to simply identify which place is marked on the map. Once you identify, you'll also be required to write a 25 to 30 words on that particular place. So this is the map question. So first map question is compulsory, then fifth question is compulsory. In these questions, question number 5 section B, question number 1 section A, question number 5 section B. Basically we have 5 sub questions that are asked as part of question number 5. So when you attempt question number 5, you are supposed to attempt all the 5 subparts. When you attempt question number 1 over here, you are supposed to attempt all the 5 subparts. When you attempt question number 5 here, you are supposed to attempt all the 5 subparts. उस पे अभी आते हैं. I'll also show you the actual question paper. अभी जस्ट मैं स्ट्रक्चर समझा रहा हूं. तो you have map, you have question number 5 which has 5 subparts, question number 1 which has 5 subparts, question number 5 which has 5 subparts. Each question, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, each question is of 50 marks. Each question is of 50 marks. This map question is of 50 marks. There are 20 sites. Each site is of 2.5 marks, which makes it a 50 mark question. This question number 5, it is of 50 marks. There are 5 subparts, so each subpart is of 10 marks. Each subpart is of 10 marks. Each subpart is of 10 marks. Now these questions.
टोटल कितने मार्क्स का पेपर होता है? 250 मार्क्स का होता है, 250 मार्क्स, 50 मार्क्स मैप क्वेश्चन, 50 मार्क्स क्वेश्चन नंबर 5, 100 मार्क्स ऑलरेडी गॉन, सो 150 मार्क्स बचे हैं। 3 क्वेश्चंस आपको और करने हैं, यू नीड टू अटेम्प्ट 3 मोर क्वेश्चंस पूरे पेपर 1 में। अब यहां आपके पास चॉइस होगी, यू विल हैव अ चॉइस, either you can attempt 1 question from this section and 2 questions from here, or you can attempt 1 question from this section and 2 questions from here. 3 क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन इस तरह से 3 चूज करने हैं कि हर सेक्शन से कम एक तो कंपलसरी एक तो क्वेश्चन हम चूज करें। यानी कि मैंने 6, 7, 8 कर दिया, बात खत्म हो गई, मैं एंशिएंट पूरी छोड़ गया था, लाइफ में पढ़ी नहीं, मैंने सिर्फ मेडिवल इंडिया पढ़ी थी, मैंने 6, 7, 8 क्वेश्चन कर दिए, मुझे आते थे, मैंने तीनों यहीं से कर दिए। दैट इज नॉट अलाउड। या तो आपको 2 क्वेश्चंस यहां से करने हैं, 1 क्वेश्चन यहां से करना है, या आपको 1 क्वेश्चन यहां से करना है, 2 क्वेश्चंस यहां से करने हैं। एंड सेम होल्ड्स ट्रू हियर एज वेल। Either you attempt 1 question from modern and 2 questions from world, or you attempt 2 questions from modern and 1 question from world. So this is the structure of your question paper. This is the structure of your exam. तो कंपल्सरी क्वेश्चंस भी हैं हमारे पास, चॉइसेस भी हैं हमारे पास। चॉइसेस हमने ऑफ कोर्स अब एंशिएंट एंड मेडिवल में आप थोड़ा सा चूज कर सकते हो कि यार अगर आपको एंशिएंट ज्यादा अच्छे से आता है तो यू फोकस मोर ऑन एंशिएंट, मेडिवल का कुछ पोर्शन आप थोड़ा सा लूजन अप कर सकते हो। इसी तरह से मॉडर्न एंड वर्ल्ड में से आप चूज कर सकते हो कि यार लेट मी फोकस मोर ऑन मॉडर्न हिस्ट्री, क्योंकि मेरे जीएस में भी काम आएगी एंड यहाँ भी काम आ जाएगी, एंड आई कैन पुट लिटिल बिट वर्ल्ड हिस्ट्री ऑन द बैक बर्नर। But then that depends on your interest as well. If you are someone जिसको जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, जिसको वर्ल्ड हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस में इंटरेस्ट है, तो ऑब्वियसली यू विल फोकस मोर ऑन वर्ल्ड हिस्ट्री, देन यू कैन हैव लिटिल बिट ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री ऑन द बैक बर्नर। तो यहां आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ द एग्जाम की वजह से थोड़ी सी लेवरेज होती है आपके पास। यहां क्वेश्चन पेपर में किसी को कोई डाउट, स्ट्रक्चर ऑफ द एग्जामिनेशन में किसी को कोई डाउट? अब आएंगे, पहले मैं आपको रन थ्रू करवा देता हूं एक एक्चुअल एग्जाम क्वेश्चन पेपर। स्लाइड से घबरा नहीं जाना, ऐसे सिलेबस ही है डिटेल में जो लिखा हुआ है, सेम ही होता है। ये आपका इस साल का 2024 का हिस्ट्री ऑप्शनल का क्वेश्चन पेपर है। अभी हम जस्ट स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, कंटेंट में नहीं जाएंगे, कंटेंट पढ़ेंगे तभी तो आएगा। तो अभी जस्ट मैं आपको स्ट्रक्चर गो थ्रू करवाना चाहता हूं। तो इस तरह से पहला ये पेपर 1 सेक्शन ए मैप क्वेश्चन है। तो आपको एक मैप दिया हुआ है, मैप पे कुछ मार्किंग्स की हुई है, 1 2 3 4 मेंशन्ड है, 20 मार्किंग्स की हुई है मैप पे, एंड हर मार्किंग के लिए थोड़ा सा हिंट दिया हुआ है। जैसे फर्स्ट साइट इज अ प्री हिस्टोरिक साइट, सेकेंड साइट जो भी वहां पर साइट होगी, सेकेंड साइट इज अ एरिया ऑफ पेट्रोगिल्ड्स, थर्ड साइट इज अ नियोलिथिक साइट, फोर्थ साइट इज अ हड़प्पन साइट, फिफ्थ साइट इज अ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। तो certain markings are made on the map and certain hints are given for those markings. You are supposed to identify which place is it, and then you are supposed to write 30 words on that place. So this is your map question, which is compulsory. Then you have question number 2, which has 3 subparts, question number 3 which has 3 subparts, question number 4 which has 3 subparts. Now these 3 subparts, these are मतलब देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि कितने सब पार्ट्स होंगे। सिंगल भी आ सकता है, 2 भी आ सकते हैं 25-25 मार्क्स के, 3 भी आ सकते हैं 15-15 20 के, 3 भी आ सकते हैं 20-20 10 के। टोटल 50 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 4 होगा। वो 2 पार्ट्स में पूछना है, 1 पार्ट में पूछना है, 3 पार्ट्स में पूछना है। 3 पार्ट्स की जो इंटरनल डिवीजन ऑफ मार्क्स होगी वो थोड़ी सी फ्लूइड रहती है, मोस्टली 2 या 3 पार्ट्स में पूछा जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। नाउ यू आर सपोज टू चूज one question, either one question from ancient India or 2 questions from ancient India. When you choose a particular question, let us say I decide to write question number 3. I'll answer this question.
थोड़ा सा ना ट्रिकी हो जाता है कि हमने पिक एंड चूज अलग हिसाब से किया होता है कि ये मेरे फेवरेट टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक मैं छोड़ के चला जाता हूं। अक्सर ऐसा होता है कि आपको 2 पार्ट्स आते होते हैं, तीसरा आता नहीं होता। वो यूपीएससी ही क्वेश्चंस को इस तरह से मिक्स करता है, तो आपको बहुत ध्यान से चूज करना पड़ता है कि आप कौन सा क्वेश्चन करो, किसके आपको तीनों पार्ट्स आते हैं, ऑब्वियसली आप वही चूज करोगे। लेट अस से कि आपको 4A एंड 4C अच्छे से आता है, बट आपको 4B के बारे में कुछ भी नहीं पता। ऑन दी अदर हैंड 3A 3B 3C के बारे में आप रीजनेबली अच्छा आंसर तीनों के बारे में लिख सकते हैं। तो उसमें ट्रिक ये होती है कि यू हैव टू चूज जिसके आप सभी पार्ट्स के बारे में कुछ कुछ अच्छा सा लिख सकते हो, रादर देन एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके बारे में आपने कुछ सुना ही नहीं है। तो लेट अस से, मतलब अज्यूम ही कर रहा हूं अभी तो मैं, हमने कौन सा पढ़ाई स्टार्ट की है, कि ये 3 सब पार्ट्स हैं जिसके बारे में मुझे रीजनेबली ठीक ठाक पता है एंड मैं अच्छा आंसर लिख सकता हूं। तो आई चूज टू राइट दिस क्वेश्चन, आई मस्ट आंसर ऑल 3 पार्ट्स। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि 2 पार्ट्स यहां से लिख दिए, एक इसका चलो लिख देते हैं, कौन सा पता चलेगा, आंसर तो सही लिखा है। ये ऑब्वियसली बचपना हमने नहीं करना है। तो व्हेन आई चूज टू राइट क्वेश्चन नंबर 3, आई मस्ट आंसर ऑल 3 क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड अंडर क्वेश्चन नंबर 3। तो ये आपका सेक्शन बी स्टार्ट हो जाएगा। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 150 वर्ड्स। तो जो 5 सब पार्ट्स हैं ए बी सी डी ई, तो 5 सब पार्ट्स आर देयर इन क्वेश्चन नंबर 5 विच इज अ कंपल्सरी क्वेश्चन। तो आपको 150 वर्ड्स में ये आंसर करने होते हैं एंड देन इन द रिमेनिंग क्वेश्चन, अब मैंने वहां से एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, क्वेश्चन नंबर 3, तो यहां पर जो 6, 7, 8 है, आई नीड टू चूज 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8। तो इसके भी 3 पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं, तो आई विल मेक माई डिसीजन अकॉर्डिंगली। तो स्ट्रक्चर ऑफ योर क्वेश्चन पेपर इस तरह से होता है। पेपर 2 की बात करें तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है इसके भी 5 पार्ट्स हैं, वो जो कंपल्सरी वाला। नाउ दिस रिलेट्स टू मॉडर्न हिस्ट्री। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी द मर्सनरी बिकेम द किंग मेकर। मॉडर्न हिस्ट्री लगाई है आप लोगों ने, आनी है अभी, आपने भी आनी है अभी। बैटल ऑफ प्लासी पढ़ी जाती है मॉडर्न हिस्ट्री में, इंटरेस्ट है तुम तीनों का? तो बैटल ऑफ प्लासी उसी के कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन है। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी द मर्सनरी बिकेम द किंग मेकर। मर्सनरी का क्या मतलब है? मर्सनरी होता क्या लिटरली? व्हाट इज मर्सनरी? भाड़े के सैनिक, पैसे लेके जो लड़ते हैं, जो मेरे सिपाही नहीं है, वो रैंडम अपना अपना कोई काम कर रहे हैं, कोई चोर है, कोई बिजनेसमैन है, कुछ भी, लाइक एनी रैंडम पर्सन डूइंग वट एवर रैंडम थिंग इन लाइफ। मैं लड़ने के लिए जा रहा था, मैंने बोल दिया कौन आएगा मेरे साथ, मैं पैसे दे दूंगा, वो अपना काम छोड़ के पैसों के चक्कर में मेरे साथ आ जाता है। दैट पर्सन इज मर्सनरी, जिसे जो सिंपली पैसों के लिए लड़ रहा है, जो फौजी नहीं है, जो सिपाही नहीं है, लेकिन सिर्फ पैसों के लिए लड़ाई के टाइम पे मेरा साथ दे देता है। तो ये ब्रिटिश के कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन है। ईस्ट इंडिया कंपनी मर्सनरी हुआ करती थी, 2 इंडियन राजा हैं, आपस में लड़ रहे हैं, तो उन्होंने ब्रिटिश वालों को पैसे दे दिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को पैसे दे दिए कि ये लो पैसे, मेरे बिहाफ पे लड़ लो। वो लड़ लेते थे, मर्सनरीज थे वो। लेकिन प्लासी के बाद मर्सनरी बिकेम दी किंग मेकर। इतने पावरफुल हो गए वो कि जिनको पहले हम पैसे दिया करते थे कि हमारे बिहाफ पे लड़ लो, अब वो डिसीजन लेने लग गए कि राजा कौन बनेगा। सो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बैटल ऑफ प्लासी। सिंपल क्वेश्चन है, जीएस में भी हम पढ़ते हैं, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये 5 वही कंपल्सरी क्वेश्चंस हो गए। द वैल्यूज ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म प्रॉम्प्टेड कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन टू अटेम्प्ट रिफॉर्म ऑफ द इंडियन सोसाइटी। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स पढ़ते हैं हम इंडियन सोसाइटी के, तो उस कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन है। मैं बहुत ज्यादा कंटेंट में नहीं जा रहा क्योंकि अभी हमने पढ़ाई की नहीं है, आप लोगों ने जीएस भी नहीं अटेंड की हुई है, सो आई एम नॉट गोइंग टू मच इनटू द कंटेंट, आई एम जस्ट डिस्कसिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन पेपर। ये कंपल्सरी आपका क्वेश्चन आ गया, एंड देन क्वेश्चन नंबर 2 3 सब पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर 3 3 सब पार्ट्स के साथ, क्वेश्चन नंबर 4 3 सब पार्ट्स के साथ। सेक्शन बी में जाते हैं तो फिर वही 5 सब पार्ट्स वाला कंपल्सरी क्वेश्चन, ए बी सी डी ई, 10 मार्क्स का ईच सब पार्ट, and then you have question number 6, question number 7, question number 8.
आइदर आप यहां से 2 क्वेश्चंस चूज करेंगे एंड वहां 1 क्वेश्चन चूज करेंगे, या वहां पर 2 क्वेश्चंस चूज करेंगे, यहां पर 1 क्वेश्चन चूज करेंगे. सो दिस इज हाउ वी गो अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ योर ऑप्शनल सब्जेक्ट. अब आते हैं सिलेबस के ऊपर, जो कहते हैं कि जी बहुत वाइड है, बहुत वास्ट है, हिस्ट्री ऑप्शनल तो पूरा ही नहीं होता, एक बार शुरू होता है खत्म नहीं होता. सुना आपने ऐसा कि शुरू ही होता है खत्म नहीं होता? ऑनलाइन बच्चे, एनी डाउट, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? अभी तक क्लियर है? सिलेबस ज्यादा है नो डाउट, लेकिन इंटरेस्टिंग है, ये ज्यादा जरूरी है. एंड जीएस के साथ बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग है, ये उससे भी ज्यादा जरूरी है. सिलेबस ज्यादा है दैट्स ट्रू, लेकिन सारा का सारा सिलेबस इंटरेस्टिंग है इफ यू हैव ऑफ कोर्स द लिटिल बिट इंटरेस्ट इन अंडरस्टैंडिंग योर पास्ट. एंड उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, जीएस के साथ बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग है. तो आप ऑप्शनल लगाते हो तो जीएस वाला एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, कल्चर, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ. प्लस एडिशनली जो आपका पॉलिटी की भी जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो भी बेटर रहती है, क्योंकि हम वो एवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में. जो कुछ एक एथिकल थिंकर्स भी आपके हिस्ट्री में कवर हो जाते हैं. महात्मा गांधी को हम कवर करते हैं, स्वामी विवेकानंद को हम कवर करते हैं, बुद्ध को हम कवर करते हैं, लॉर्ड महावीर को हम कवर करते हैं. देन हम वेस्टर्न थिंकर्स आर ऑल्सो कवर्ड, रूसो को हम कवर करते हैं, कांत को हम कवर करते हैं. तो काफी आपको जो जीएस में है ओवरऑल इससे हेल्प हो जाती है. अब इस स्लाइड में तो ये तो पूरा सिलेबस है, एक पेज पे पूरा का पूरा. दिस इज एंटायर एंशिएंट हिस्ट्री, दिस इज एंटायर मेडिवल हिस्ट्री, दिस इज एंटायर मॉडर्न हिस्ट्री, दिस इज एंटायर वर्ल्ड हिस्ट्री. तो 4 स्लाइड्स में खत्म हो गया. ये क्या बड़ा काम था. सिलेबस सेम ही है. अगर आप टॉपिक्स देखो ना, टॉपिक्स एग्जैक्टली सेम है एज योर जनरल स्टडीज के टॉपिक्स. सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री आप जीएस में भी पढ़ते हो, फर्स्ट टॉपिक इन एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री. सीक्वेंस भी सेम है, टॉपिक्स भी सेम है, जस्ट डेप्थ का डिफरेंस है. जनरल स्टडीज में आप किस डेप्थ तक उसी टॉपिक को कवर करते हो, ऑप्शनल में किस डेप्थ तक आप उसी टॉपिक को कवर करते हो. डेप्थ का डिफरेंस है, टॉपिक के नाम में कोई डिफरेंस नहीं है. देयर इज नथिंग दैट यू स्टडी इन ऑप्शनल एज अ लाइक टॉपिक हेडिंग विच यू डोंट स्टडी इन योर जनरल स्टडीज. सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री आप स्टडी करते हो कि हाउ यू नो व्हाट यू नो. हिस्ट्री क्या है? स्टडी ऑफ पास्ट. व्हाट इज हिस्ट्री? हिस्ट्री इज स्टडी ऑफ पास्ट. दिस इज एन इनकम्प्लीट डेफिनेशन ऑफ हिस्ट्री. Study of past on the basis of historical information, on the basis of various sources of information. आपके पास एविडेंस क्या है जो आप बात बोल रहे हो कि यार दिस थिंग हैपेंड इन द पास्ट. लाइक इन योर स्कूल टाइम्स मेनी ऑफ यू वुड हैव सेड, हमें क्या पता तब क्या हुआ, हम कौन सा तब थे. और यू वुड हैव एटलीस्ट लिसन टू समवन सेइंग सो. यार हमें क्या पता अकबर ने क्या किया, हम कौन सा तब थे. हमें क्या पता अशोक ने क्या किया, हम कौन सा तब थे. हमें क्या पता हिटलर ने वो क्या किया, हम कौन सा तब थे. ऑफ कोर्स तुम तब नहीं थे. फिर आपको कैसे पता? आपको पता है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. क्या हिस्टोरिकल एविडेंस है तुम्हारे पास, किस बेसिस पे तुम बोल रहे हो कि पहले ऐसा हुआ कि अशोक ने बुद्धिज्म को प्रीच किया. What is the source of information? अशोक कलिंगा वॉर में लड़ा, उसके बाद उसने वॉर एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी रिनाउंस कर दिया कि यार मैं लड़ाई करूंगा ही नहीं आज के बाद. तुम कैसे बोल रहे हो ये बात? तुम तो तब थे नहीं. What are your sources of history? ये आपका फर्स्ट टॉपिक रहता है. तो अलग अलग सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री हो सकते हैं, जैसे यू कैन हैव लिटरेरी एविडेंस. अशोक ने क्या पता भाई कोई किताब लिखवा दी हो. You can have archaeological evidence. अशोक ने क्या पता किसी पत्थर पे लिखवा दिया हो कि मैंने आज के बाद वॉर करने ना करने का डिसीजन लिया. You can have numismatic sources. Numismatics मतलब, have you heard of this name, numismatics?
अभी सुने। न्यूमिस्मैटिक्स होता है स्टडी ऑफ कॉइन्स। स्टडी ऑफ कॉइन्स से कैसे हमें हिस्ट्री पता चलेगी? मेटल्स की डेटिंग तो कम ही करते हैं हम, बट जो इन्होंने पॉइंट रेज किया कि मेटल, आपने सिक्का आज भी कॉइन, उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो बना होता है, नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया बना होता है, क्योंकि भारत सरकार ने वो सिक्का इशू किया है। इंग्लैंड में कॉइन्स इशू होते थे, पहले क्वीन एलिजाबेथ थी उनके नाम के इशू होते थे, अब चार्ल्स हैं उनके नाम के इशू होते हैं। तो जो राजा होता है, जो सरकार ऑफ द डे होती है, वो अपना सिंबल या अपना पोर्ट्रेट कॉइन्स के ऊपर इशू करवाती है। तो हमें उन कॉइन्स को स्टडी करके पता चलता है कि अच्छा ये भी एक राजा रहा होगा, इस टाइम पे ये राजा रहा होगा। जैसे एक डायनेस्टी है, हमारे इंडियन हिस्ट्री में रेफरेंस आता है इंडो ग्रीक डायनेस्टी, इंडो ग्रीक्स। इंडो ग्रीक्स के कहते हैं कि कुछ 40 प्लस राजा थे, 42 43 राजा थे। उन 42 43 राजाओं में 35 राजाओं का हमें सिर्फ नाम पता है और कुछ नहीं पता। आउट ऑफ दोज 42 राजास वी ओनली नो द नेम्स ऑफ 35 राजास, नथिंग एल्स। हमें उनके नाम भी कैसे पता? किसी किताब में उनका रेफरेंस नहीं आता, किसी इंस्क्रिप्शन में उनका रेफरेंस नहीं आता, किसी इंडियन ने उनके बारे में मेंशन नहीं किया, किसी फॉरेनर ने उन्हें उनके बारे में मेंशन नहीं किया। फिर हमें कैसे पता कि वो राजा थे? क्योंकि उनके कॉइन्स मिले हैं जिसपे उन्होंने साल लिखा हुआ है। कॉइन पे साल भी लिखा होता है, 2025, 2024, 2018, 2002। उन्होंने अपनी फोटो बनाई है, पोर्ट्रेट बनवाया अपना, उन्होंने अपना नाम लिखवाया जो हम पढ़ सकते हैं, उन्होंने नीचे साल लिखा हुआ है, साल किस साल ये कॉइन मैंने इशू किया है। तो भाई राजा रहा होगा तभी वो कॉइन है। सो न्यूमिस्मैटिक्स, इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। मॉन्यूमेंट्स, लाल किला देख ही लो, मंदिर, लिविंग हिस्ट्री है कि तब से लेके अब तक यूज कर रहे हैं लोग। तो ऑल दीज मॉन्यूमेंट्स आर ऑल्सो लिविंग टेस्टामेंट्स ऑफ हिस्ट्री। तो ये सारे हमारे सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री हैं। इन्हीं सोर्सेज को एनालाइज करके हमें हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन मिलती है। लेकिन कई बार झोल भी हो जाता है, कई बार झोल भी हो जाता है, दो सोर्सेज अलग अलग बात बोल रहे हैं। इंस्क्रिप्शंस की मैंने बात की कि किसी पत्थर पे हमने लिखवा दिया, लेट अस से दो राजाओं की लड़ाई हुई, ऐसे ही मैं एंशिएंट हिस्ट्री से रैंडम एग्जांपल दे रहा हूं। एक राजा था नहापन्ना, उसकी एक दूसरी डायनेस्टी का, दूसरे इलाके का दूसरा राजा था गौतमी पुत्र सतकर्णी। नहापन्ना गुजरात का राजा था, गौतमी पुत्र सतकर्णी महाराष्ट्र वाले रीजन का राजा था। उनकी आपस में लड़ाई होगी, दोनों ने उस लड़ाई के बारे में लिखवाया हुआ है, दोनों ही क्लेम कर रहे हैं कि मैं जीत गया। जो गुजरात में इंस्क्रिप्शन मिली है, गुजरात वाली इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है नहापन्ना जीत गया। जो डेक्कन में इंस्क्रिप्शन मिली है, पत्थर के ऊपर जो उन्होंने लिखवाया हुआ है, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है गौतमी पुत्र सतकर्णी जीत गया। थोड़ा सा मॉडर्न टाइम्स के साथ रिलेट कर पा रहे हो? अपना अभी मुद्दा हुआ पाकिस्तान के साथ, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन 7, 8, 9, 10 की रात चला। ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान कहता हम जीत गए, हम बोल रहे हैं हम जीत गए। न्यूज को आपने फॉलो किया है ना, आई गेस यू वुड हैव फॉलोड द करंट इवेंट्स। तो पाकिस्तान आल्सो क्लेम्ड विक्ट्री ऑन इंटरनेशनल फोरम्स, इंडिया आल्सो क्लेम्ड विक्ट्री ऑन इंटरनेशनल फोरम्स। जीता तो कोई एक ही होगा, लेकिन ये झोल हिस्ट्री में भी रहे हैं। ये कोई आज के झोल नहीं है, यू आर नॉट इवन सरप्राइज्ड बाय दीज थिंग्स। ये कोई आज के झोल नहीं है। तो नहापन्ना एंड गौतमी पुत्र सतकर्णी की लड़ाई होती है, नहापन्ना ऑल्सो क्लेम्स विक्ट्री, गौतमी पुत्र सतकर्णी ऑल्सो क्लेम्स विक्ट्री। जीता तो कोई एक ही होगा, फिर वो कैसे पता चलेगा? उसके लिए अदर सोर्सेस रेफर करने पड़ेंगे। तो इस तरह से मतलब इंटरेस्टिंग रहती है हिस्ट्री की। अच्छा यार ऐसा क्यों हुआ भी या गप्पे ही मार रहे हैं? You have to, like as a historian, you need to distinguish between history and gappe, history and mythology, history and hearsays.
अब जैसे एक और इसी चीज की अगर मैं एग्जांपल दूं, हमारे इंडिया में फॉरेनर्स आते रहे हैं, ट्रेवलर्स आते रहे हैं, तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फॉरेनर्स जो इंडिया आया है उसका नाम था मेगास्थीन्स। हैव यू हर्ड दिस नेम, मेगास्थीन्स? कौन बताएगा हु वाज मेगास्थीन्स? ग्रीक एम्बेसडर था, यूरोपियन था, ग्रीक था, ग्रीक एम्बेसडर टू इंडिया था। अब वो भाई साहब अपनी वो किताब भी लिख के जाते हैं बाकायदा, इंडिया आए हैं तो यार देखते हैं यार बड़ा इंटरेस्टिंग है, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग लैंड, इंटरेस्टिंग पीपल, इंटरेस्टिंग कस्टम्स, इंटरेस्टिंग कन्वेंशंस। जैसे आज भी फॉरेनर्स आके इंडिया से काफी आश्चर्यचकित रह जाते हैं डिस्पाइट नोइंग एवरीथिंग अबाउट इंडिया। ही वाज आल्सो वेरी मेस्मराइज्ड बाय इंडिया, सो ही रिकॉर्ड्स हिज ऑब्जर्वेशंस इन अ बुक कॉल्ड इंडिका। लेकिन था तो वो फॉरेनर्स ही। अगेन आपने आज जो हो रहा है आपके अराउंड उसको भी ध्यान में रखना है उस टाइम की सिचुएशन को समझने के लिए। कुछ चीजें तो उसने अपनी आंखों से ऑब्जर्व की एंड उसने एज इट इज अपनी किताब में लिख दी। फिर अगर कोई बाहर से आएगा आपके साथ घूम रहा है, आप उसको कहानियां भी सुनाओगे, सच्ची झूठियां, कभी कभी आप सही बातें बताओगे, कभी कभी आप बढ़ा चढ़ा के भी बातें बताओगे। उसको किसी ने, भाई जो हमारे समाज में कहानियां तो बहुत है हमारे समाज में, जो अपने वाले बंदों ने उसे सच्ची झूठी कहानियां सुनाई कि एक गांव है वहां पर लाइक 4 पैरों वाले लोग रहते हैं, एक पहाड़ है हमारे यहाँ पर जहां पर गोल्ड डिगिंग एंट्स रहते हैं, ऐसी कीड़ियां रहती हैं जो सोना निकालती हैं जमीन के नीचे से। कुछ ऐसे एक गांव है जहां पर उल्टे पैरों वाले लोग रहते हैं। तो इस तरह की बातें भी उसने अपनी किताबों में लिखी हुई हैं। अब ऑब्वियसली दीज थिंग्स आर ब्लेटेंटली इनकरेक्ट थिंग्स, so as a historian you need to have a critical eye. What can be trusted, what cannot be trusted, what could be the actual observation of Megasthenes, what could simply be a fantasy or a story being told to him by a local person. तो इस तरह से sources of history होते हैं। then prehistoric period हम study करते हैं, the Paleolithic period, the Mesolithic period and the Neolithic period। तो किस तरह से early man की social evolution होती है, किस तरह से अर्ली मैन पहले टूल्स बनाता है, उन टूल्स को बेटर करता रहता है, बेटर करता रहता है, बेटर करता रहता है, पहले शिकार कर रहा होता है, अल्टीमेटली एग्रीकल्चर करना स्टार्ट करता है। तो प्री हिस्ट्री वाला पीरियड हम कवर करते हैं। अब वंस मैन हैज लर्नड टू डू एग्रीकल्चर, खेती करनी उसने सीख ली है, फिर जो भटक थी वो खत्म हो गई है। पहले नोमैडिक लाइफ थी, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, एक जंगल से दूसरी जंगल जा रहा है, in the search of resources, in search of food। एक बार एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया, भटक खत्म हो गई है, दैट नोमैडिक लाइफ खत्म हो गई है। अब एक जगह पर सेटल हुआ जा सकता है एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए। अब मैंने आज अगर वीट ग्रो की है तो 4 महीने बाद ही मिलेगी ना, तब तक तो रुकना पड़ेगा एक ही जगह पे। आई कैन नॉट मूव टू अ न्यू प्लेस। तो वहां से गांव बनने स्टार्ट हो गए, सेटल्ड विलेजेस बनने स्टार्ट हो गए। धीरे धीरे करके एग्रीकल्चर भी इंप्रूव हुआ, प्रोडक्शन भी इंप्रूव हुई, फिर शहर बनने स्टार्ट हो गए। एंड शहर बनने स्टार्ट हुए, दैट इज दी प्रोटो हिस्ट्री वाला पीरियड दैट वी कॉल ऑफ एज इंडस वैली सिविलाइजेशन। पहली अर्बन सिविलाइजेशन इंडिया में इवॉल्व होती है। अब अगेन एज टॉपिक्स जीएस में भी ये सारी चीजें करनी है, प्री हिस्ट्री हमें करनी है, प्रोटो हिस्ट्री हमें करनी है, इंडस वैली सिविलाइजेशन हमने करनी है। देन मेगालिथिक कल्चर्स, ये वही हमारा प्री हिस्ट्री वाला पोर्शन कंटिन्यू करेगा। कुछ एरियाज इंडिया के ऐसे थे जहां अभी ये जो एवोल्यूशन हमने अभी डिस्कस की ये कंप्लीट नहीं थी, कि ऐसा नहीं है कि सारे के सारे इंडिया में ही अर्बनाइजेशन आ गई। कुछ इंडिया अभी भी वही पुराने बैकवर्ड टेक्निक्स ऑफ एग्रीकल्चर ही इस्तेमाल कर रहा था। तो लेकिन वो बहुत बड़े बड़े पत्थर के टूल्स इस्तेमाल किया करते थे, बहुत बड़े बड़े पत्थर के मेमोरियल्स वगैरह बनाया करते थे, उनके लिए वर्ड यूज होता है मेगालिथिक कल्चर। फिर वैदिक पीरियड आ जाता है। वैदिक पीरियड वाज फॉलोड बाय द पीरियड ऑफ महाजनपद। अब एक्चुअल जो हमारी रिटन हिस्ट्री है वो इस पीरियड से स्टार्ट होती है। इससे पहले वाला जो पीरियड है हमारे पास कोई लिखित सोर्स नहीं है हिस्ट्री का। जो हमने खुदाइयां की हैं, जो हमें मटेरियल रिमेन्स मिले हैं, उसके बेसिस पे हमने हिस्ट्री को समझने की कोशिश की है। यहां हमारे पास पहले लिखित सोर्सेज आते हैं, रिटन सोर्सेज आते हैं।
तो यहां से हम कहते हैं कि हिस्ट्री प्रॉपर स्टार्ट हुई, वैदिक सिविलाइजेशन। उसके बाद बुद्धिज्म एंड जैनिज्म का राइज होगा, महाजनपदास का राइज होगा, धीरे धीरे किंगडम्स बनने स्टार्ट होंगे, पहले छोटे किंगडम, फिर बड़े किंगडम, फिर ऑल इंडिया एम्पायर। विच वॉज द फर्स्ट ऑल इंडिया एम्पायर? फर्स्ट ऑल इंडिया एम्पायर कौन सा था? मौर्यन एम्पायर वॉज द फर्स्ट ऑल इंडिया एम्पायर। तो पहले छोटे छोटे स्टेट्स बने, फिर बड़े किंगडम्स बने, बड़े किंगडम्स के बाद वो उनकी आपस में लड़ाई होती रही, एंड इट वाज अल्टीमेटली द मौर्यास दैट वर एबल टू एस्टैब्लिश देयर होल्ड ऑन द एंटायर सब कॉन्टिनेंट। तो हर पीरियड के बारे में हम डिटेल में स्टडी करते हैं। तो वैदिक पीरियड के बाद पीरियड ऑफ महाजनपद, जब बड़े बड़े किंगडम्स बने, एंड देन द मौर्यन एम्पायर, जब एक ऑल इंडिया एम्पायर क्रिएट हुआ। अब ऑल इंडिया एम्पायर भी एक टाइम तक ही फ्लरिश करता है। इतना बड़ा एम्पायर होता है वो अल्टीमेटली इंटरनल रीजंस की वजह से एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स, ऑफ कोर्स, बाहर से इन्वेजन हो गई, इंटरनली जो राजा थे वो इतने पावरफुल नहीं थे कि उसे संभाल पाए, तो इट लेड टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मौर्यन एम्पायर। तो मौर्यन एम्पायर के बाद पोस्ट मौर्यन पीरियड आता है। अब ये जो पीरियड है, दिस पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। कोई सच सिंगल एम्पायर नहीं था जो पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर राज कर रहा था, रादर देयर वर स्मॉल 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 किंगडम्स, रीजनल किंगडम्स। सो द पोस्ट मौर्यन पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय द राइज ऑफ रीजनल किंगडम्स, इंडो ग्रीक, साकास, कुशान्स, वेस्टर्न क्षात्रापास। तो ये सारी चीजें होती रहती हैं। ये भी रीजनल किंगडम्स ही आगे कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑल इंडिया एम्पायर क्रिएट होता है गुप्तास का। तो कहानी फिर से रिपीट होती है। आपने एक फेमस कोट सुना होगा, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। वो आपको यहां पर दिखेगा भी। छोटे स्टेट्स, उनकी कॉम्बिनेशन से बना ऑल इंडिया एम्पायर, फिर से छोटे स्टेट्स, उनकी कॉम्बिनेशन से बनेगा ऑल इंडिया एम्पायर। ऑल इंडिया एम्पायर एक टाइम तक फ्लरिश करेगा, फिर उसके बाद डिसइंटीग्रेशन हो जाएगी, फिर बनेगा ऑल इंडिया एम्पायर। तो ये बार बार ऐसा होता रहेगा। तो गुप्तास के बाद, मतलब ये कुछ अदर डायनेस्टीज होती हैं, वकतकास एंड वर्धांस। उसके बाद फिर आता है पीरियड ऑफ रीजनल किंगडम्स। आफ्टर गुप्तास एज वेल वी हैड अ पीरियड ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन और द पीरियड ऑफ राइज ऑफ रीजनल किंगडम्स। नॉर्थ में, ईस्ट में, साउथ में, वेस्ट में वी हैव डिफरेंट रीजनल किंगडम्स। फिर कुछ कल्चरल थीम्स भी हम अलग से स्टडी करते हैं हिस्ट्री ऑप्शनल में। तो जो आपका जीएस में जो कल्चर वाला पार्ट आता है, तो वो भी यहाँ पर आपका कवर हो जाता है। आपको आर्ट एंड आर्किटेक्चर स्टडी करना है, आपको फिलोसफी स्टडी करनी है, आपको रिलीजन को स्टडी करना है, आपको पेंटिंग को स्टडी करना है, आपको लिटरेचर को स्टडी करना है। तो कुछ कल्चरल एस्पेक्ट्स हम स्टडी करते हैं। लैंग्वेज एंड टेक्स्ट, मेजर स्टेजेस इन द एवोल्यूशन ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, philosophical thinkers, schools, ideas in science and mathematics. Last है early medieval India. Now this period 750 से 1200, this period is known as transition from ancient India to medieval India. Ancient अच्छे से मतलब प्रॉपर खत्म हो गया, medieval अगर प्रॉपर स्टार्ट हुआ नहीं है, तो उसके जो बीच वाला पीरियड है that is known as, नाम से ही क्लियर है, early medieval India. अब यहां पर अगेन दिस वाज अ पीरियड ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। अभी कोई ऑल इंडिया एम्पायर नहीं बना है, तो अभी भी रीजनल किंगडम्स ही कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे करके मतलब रिस्पेक्टिव रीजन्स में बड़े किंगडम्स बनाने की टेंडेंसी है। जैसे राजपूत्स, पूरे नॉर्थ एंड वेस्ट इंडिया के ऊपर राजपूत्स अपना डोमिनेंस बना लेते हैं। साउथ इंडिया में चोला एम्पायर, चोलास का नाम सुना हुआ है आपने, तो चोलास साउथ इंडिया में एक बहुत बड़ा एम्पायर बना लेते हैं। ना सिर्फ साउथ इंडिया में, पूरे इंडियन ओशन रीजन में, श्रीलंका, मालदीव्स, आज की डेट का मलेशिया, आज की डेट का इंडोनेशिया, इस पूरे रीजन में चोलास अपनी डोमिनेंस बना लेते हैं। तो दैट वाज दिस पीरियड अर्ली मेडिवल इंडिया 750 से 1200। फिर कुछ और कल्चरल एस्पेक्ट्स, वही हमने कल्चरल एस्पेक्ट्स आपके क्या है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर आपको करना है, रिलीजन एंड फिलोसफी आपको करना है, लिटरेचर आपको करना है, पेंटिंग आपको करना है, म्यूजिक आपको करना है। तो ये कल्चरल एस्पेक्ट्स थ्रू आउट हिस्ट्री ही, एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री हम कवर करेंगे। नेक्स्ट 13, यहां से आपका मेडिवल स्टार्ट हो जाता है। तो 13 सेंचुरी से हम स्टार्ट करते हैं, दिल्ली सल्तनत की जो एस्टेब्लिशमेंट है।
तो दिल्ली सल्तनत, हालांकि जो हमारा सिलेबस है वो 13th सेंचुरी से स्टार्ट होता है, विच इज 1200 से आसपास से स्टार्ट होता है, लेकिन उसकी जो बैकग्राउंड है वो भी हम कवर करेंगे। मोहम्मद गौरी आता है, महमूद ऑफ गजनी आता है, उससे पहले अरब कंक्वेस्ट ऑफ सिंध होता है, तो वहां से हम स्टोरी स्टार्ट करेंगे एंड विल गो टिल द क्रिएशन ऑफ दिल्ली सल्तनत इन 1206 इन 1206। तो फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड अर्ली टर्किश सुल्तान्स। 14th सेंचुरी में खलजीज का रूल आता है, तुगलक्स का रूल आता है। दो इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज आती हैं, द खलजी डायनेस्टी, अलाउद्दीन खलजी, पद्मावत, तो वो वाला पूरी खलजी डायनेस्टी वाला पीरियड हम कवर करते हैं, तुगलक डायनेस्टी वाला पीरियड हम कवर करते हैं। नेक्स्ट सोशो कल्चरल एस्पेक्ट साइड बाय साइड चलेंगे। मैंने पहले भी मेंशन किया जो कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं एंड जो सोसाइटी रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं। सोसाइटी रिलेटेड एस्पेक्ट में आपका पोजीशन ऑफ वुमेन इन दी सोसाइटी क्या थी, या जो पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन्स वो आपस में किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे थे, राइज ऑफ भक्ति मूवमेंट, राइज ऑफ सूफी मूवमेंट, ये सारी चीजें हम यहाँ पर कवर करते हैं। देन आपका रीजनल डायनेस्टीज वाला पीरियड आता है। दिल्ली सल्तनत एंड मुगल एम्पायर दो बड़े डायनेस्टीज थी मेडिवल इंडिया की, लेकिन इन दोनों के बीच में पीरियड आता है वही पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन का। हिस्ट्री मैंने पहले भी बताया, एक बड़ा एम्पायर बनेगा वो डिसइंटीग्रेट होगा, एक बड़ा एम्पायर बनेगा वो डिसइंटीग्रेट होगा। तो दिल्ली सल्तनत, फिर एक पीरियड ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन आता है, छोटे छोटे रीजनल किंगडम्स बनेंगे, फिर एक बड़ा एम्पायर बनेगा दैट इज दी मुगल एम्पायर। इसी तरह से आगे फिर मुगल एम्पायर के एस्पेक्ट्स कवर करेंगे। अकबर है 17th सेंचुरी में, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब, तीन इंपॉर्टेंट रूलर्स यहां पर आ जाएंगे। एंड वेरियस पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द मुगल एम्पायर हम देखेंगे। नेचर ऑफ स्टेट क्या थी अंडर द मुगल्स, मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स क्या थे, उनका रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर कवर करते हैं। इकोनॉमी एंड सोसाइटी के एस्पेक्ट्स साथ साथ चलते रहते हैं एंड कल्चर के एस्पेक्ट्स भी, वही सारी चीजें, लिटरेचर, म्यूजिक, पेंटिंग्स, ये सारी चीजें साथ साथ चलेंगी। यहां पर आपका मेडिवल हिस्ट्री कंप्लीट होता है, दैट इज द 18th सेंचुरी, जो लेटर मुगल्स वाला पीरियड है। डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर आपका लास्ट टॉपिक रहता है, एंड डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर ऑफ कोर्स वाज कैरेक्टराइज्ड बाय राइज ऑफ रीजनल किंगडम्स। बड़ा सा एम्पायर बना दिया मुगल एम्पायर, कभी तो कमजोर होगा, कभी तो डिसइंटीग्रेशन होगा मुगल एम्पायर का। जब डिसइंटीग्रेशन होगा तो क्या होगा, राइज ऑफ रीजनल किंगडम्स। सिख एम्पायर बनता है पंजाब में, मराठा एम्पायर बनता है, बंगाल में सल्तनत बनती है, मैसूर में सल्तनत बनती है। तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में डिफरेंट रीजनल किंगडम्स का राइज होता है। तो जब ब्रिटिश इंडिया आते हैं, ब्रिटिश डिड नॉट फाइट अगेंस्ट अ सेंट्रलाइज्ड एम्पायर। कोई ऐसा कोई मुगल एम्पायर या कोई और एम्पायर पूरे इंडिया के ऊपर राज नहीं कर रहा था कि एक एम्पायर को हरा दिया, अब वो राजा हट गया, हम उनकी जगह पे राजा बन गए। रादर छोटे छोटे रीजनल किंगडम्स थे। तो व्हाट ब्रिटिश वर सपोज टू डू, दे वर सपोज टू डील विद इंडिविजुअल किंग्स, इंडिविजुअल किंगडम्स। तो उनको एक एक करके वो लोग हराते हैं एंड इवेंचुअली आफ्टर अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस ऑफ 100 years they were able to establish their hold over entire Indian subcontinent. वो कहानी हम मॉडर्न हिस्ट्री में कवर करते हैं भाई। यूरोपियन पेनिट्रेशन, अब मैं जस्ट टॉपिक्स गो थ्रू कर रहा हूं। यूरोपियन पेनिट्रेशन, ब्रिटिश एक्सपेंशन इन इंडिया, किस तरह से ब्रिटिश रूल एक्सपैंड करता है। देन द अर्ली स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रिटिश राज, जैसे जैसे ब्रिटिश रूल एक्सपैंड कर रहा है, जिन एरियाज में उन्होंने अपना कंट्रोल बना लिया है वहां पर वो एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह की इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। द अर्ली स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रिटिश राज। देन द इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल। अब क्योंकि वो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन चेंज कर रहे हैं, हमारा ट्रेड एंड कमर्स अपने बेनिफिट के लिए हमें लूट रहे हैं, तो उसका इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या था, एग्रीकल्चरल इंपैक्ट क्या था, इंडस्ट्रीज के ऊपर इंपैक्ट क्या था, ट्रेड के ऊपर इंपैक्ट क्या था, डेवलपमेंटल इंपैक्ट क्या था, जैसे रेलवेज वगैरह ब्रिटिश इंट्रोड्यूस करते हैं। तो इन सभी एस्पेक्ट्स को हम स्टडी करते हैं इन द इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल। सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट्स, सिर्फ इकोनॉमिक इंपैक्ट नहीं था, वो हमारी सोसाइटी में भी इंटरफियर कर रहे थे, हमारे रिलीजन में भी इंटरफियर कर रहे थे। तो एजुकेशन के जरिए उन्होंने हमें ट्रेन करने की कोशिश की अपने तरीके से। तो सोशल इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल क्या था, या जो उन्होंने सोशल रिफॉर्म्स करने की कोशिश की। वन ऑफ द फेमस सोशल रिफॉर्म्स है अबॉलिशन ऑफ सती। हमारे समाज में सती प्रथा थी,
अंग्रेजों ने उस प्रथा को अबॉलिश किया, जस्ट एज एन एग्जाम्पल। तो क्यों कर रहे हैं वो ये सारे रिफॉर्म्स? अब रिफॉर्म्स तो ऐसे हम, हो गया टाइम, कर रहे हैं रिफॉर्म्स तो हम सारे जनरल स्टडीज में भी कवर करते हैं, लेकिन अब उनका जो क्यों वाला एस्पेक्ट है, एनालिसिस वाला एस्पेक्ट है, वो हिस्ट्री ऑप्शनल में इंपॉर्टेंट रहता है। तो सोशो कल्चरल इंपैक्ट, रिफॉर्म मूवमेंट्स, revolt of 1857, how were Indians responding to this thing? Then rise of Indian National Congress, rise of Indian National Congress हमारा अर्ली नेशनलिज्म में आ जाता है। 3 फेजेस में हम कांग्रेस को स्टडी करते हैं, द मॉडरेट फेज, द एक्सट्रीमिस्ट फेज एंड द गांधीयन फेज। तो तीनों फेजेस के जो भी पेक्यूलियर एस्पेक्ट्स है वो हम स्टडी करते हैं। मेन स्ट्रीम नेशनलिज्म के अलावा जो हमारा अदर ट्रेंड्स इन नेशनल मूवमेंट है वो भी चलते रहते हैं। फॉर एग्जांपल के हाउ वर विमेन रिस्पॉन्डिंग टू दी नेशनलिस्ट मूवमेंट, हाउ वर दलित्स रिस्पॉन्डिंग टू दी नेशनल मूवमेंट, हाउ वर इंडियन बिजनेसेस रिस्पॉन्डिंग टू दी नेशनल मूवमेंट, हाउ वर द इंडियन वर्किंग क्लासेस, लेबर क्लासेस रिस्पॉन्डिंग टू दी नेशनल मूवमेंट। तो अदर एस्पेक्ट्स हम स्टडी करते हैं, अदर ट्रेंड्स इन द नेशनल मूवमेंट हम स्टडी करते हैं। एंड लास्टली ऑफ कोर्स जो पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री है, 1947 से लेके 1964 तक की जो हिस्ट्री है, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर मॉडर्न हिस्ट्री सिलेबस। तो आजादी के बाद नेहरूवियन एरा जो है उसके वेरियस सोशल एस्पेक्ट्स, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हम स्टडी करते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री सारी हमारी आ जाती है 18वीं सेंचुरी से लेके 1990 सोवियत यूनियन की डिसइंटीग्रेशन तक। तो ये हमारा पूरा सिलेबस ऑफ हिस्ट्री ऑप्शनल है। अच्छी बात यही है अगेन टू कंक्लूड के जीएस में ये सारी चीजें इन एनी केस आपको कवर करनी है, ऑप्शनल में बस आपको ज्यादा डेप्थ में जाना है, एनालिसिस के ऊपर फोकस करना है, रट्टे के ऊपर फोकस कम करना है। इट इज लेस अबाउट डेट्स, मोर अबाउट एनालिसिस। एनीथिंग यू वांट टू आस्क? ऑप्शनल को लगेंगे आपके अप्रोक्सीमेटली, ये दिसंबर एंड तक खत्म होगा आपका, तो अभी जुलाई से स्टार्ट होगा, 6 मंथ्स लगेंगे। सो एवरी सेक्शन टेक्स अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 वीक्स। तो आपकी मंडे टू फ्राइडे क्लास होगी, एक दिन आपका टेस्ट होगा। तो इस तरह से आपका क्लास रहती है। तो मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस होंगी, सैटरडे आपका टेस्ट होगा। 2 आवर क्लास डेली होती है, मतलब 2:30 से 4:30 आफ्टरनून में आपकी क्लास होगी। मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे आपका टेस्ट होगा। तो 5 to 6 वीक्स ईच सेक्शन को लगते हैं एंड देन वी मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन। सोर्सेज हम आपको बुकलेट्स प्रोवाइड करेंगे विच विल हैव स्टडी मटेरियल फ्रॉम ऑल दी अवेलेबल गुड बुक्स। जैसे एंशिएंट हिस्ट्री के लिए रोमिला थापर मैम की बुक है, उपिंदर सिंह मैम की बुक है, आर.एस. शर्मा सर की बुक है। तो उन बुक्स में एंड प्लस ऑफ कोर्स इग्नू के नोट्स हैं। तो इन सोर्सेस से हमने कंबाइन करके जो जो अच्छे अच्छे चैप्टर्स हैं उनकी समरी करके हमने बुकलेट बनाई हुई है, हम आपसे वो बुकलेट शेयर करेंगे। उसके अलावा अगर कोई एसेंशियल रीडिंग होगी तो वो आपको क्लास में मेंशन कर दी जाएगी कि ये वाला चैप्टर पढ़ा जा सकता है, उसका आपको अटैचमेंट भी दे दी जाएगी। यू डोंट नीड टू बाय एनी बुक सेपरेटली। और कोई डाउट? तो हमारी 2:30 से 4:30 क्लास रहेगी। और भाई ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अगर आप 2027 में जिसने अटेम्प्ट देना है, अगर तो आपने जीएस कर लिया हुआ है तो यू कैन मूव टू ऑप्शनल अभी ही। अगर आपका जीएस चल रहा है एंड देन यू आर ऑल्सो अटेंडिंग लेट्स से कॉलेज और यू आर डूइंग जॉब, देन यू कैन पोस्टपोन द ऑप्शनल टू नेक्स्ट ईयर। नहीं, आपका अगर आपने 28 में देना, पढ़ाई भी चल रही है, कॉलेज से कितने बजे फ्री होते हो? तो कम ही जाते हो तो आ जाओ। अगर कॉलेज जा रहे हो और नहीं जा सकते फिर बात अलग है। If you are free, then the earlier you complete the better. If you in any case are not free, if you tell me कि सर मैं 4 बजे तो मुझे कॉलेज से छुट्टी होती है, मैं तो 5 से 8 की क्लास ही लगा सकता हूँ,
देन ऑफ कोर्स यू वोंट बी एबल टू कवर ऑप्शनल, क्योंकि 4 बजे तो आपको कॉलेज से छुट्टी हो रही है। तो अगर आप फ्री हो एंड मतलब आपने चाहे बाद में भी पेपर देना है तो आप अभी स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज द अर्लियर यू कंप्लीट द बेटर, क्योंकि उतना ही आपको मल्टीपल रिविजन्स का टाइम मिल जाता है, उतना ही आपको आंसर राइटिंग का टाइम मिल जाता है, उतना ही आपको कंसोलिडेशन का टाइम मिल जाता है, उतना ही आपको 2-4 सोर्सेस और पढ़ने का टाइम मिल जाता है। और जीएस के कंपैरिजन में डेट्स तो कोई बहुत ज्यादा नहीं होती, आ जाओ आ जाओ, डेट्स तो बहुत ज्यादा नहीं होती, लेकिन डाउट्स ही चल रहे थे। चलो भाई, आई विल सी यू लेटर, अभी विल मूव टू दी नेक्स्ट इंडक्शन।